नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के कंटिन्यूएशन में उसमें जो टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसी के कंटिन्यूएशन में आगे जो टॉपिक आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में मैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इस चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दैट मीन्स in my previous video I told you and I explained that what was the condition of industry and agriculture at the time of independence in India. So now let's start our next topic, that is about the foreign trade. So here you can see about the foreign trade. We all know what is the foreign trade. When one country do the trade with other countries, that type of trade is called the foreign trade. If we sell out some goods and services to other countries, then that is known as export. And if we purchase the goods and services from other countries, then it is called the import. So that is the foreign trade. It includes both export and import. So now in this topic we will discuss what was the condition of India regarding the foreign trade. So you can see here that India has been an important trading nation since an ancient time. We all know about this fact that India was known as a golden sparrow because of its foreign trade. That means in ancient time the condition of India was so strong regarding its foreign trade, and we do a lot of export in foreign countries, or especially in European countries. And what we export, these were goods like handicrafts, silk, cotton, spices, and the huge demand at that time in European countries. That's why the India's position in foreign trade was very strong at that time. That means before arrival of the Britishers in our country. But after the arrival of the Britishers in our country, the condition became worsened. The restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. Here I use three words, and these are the structure, composition, and volume of India's foreign trade. Now see here that the structure means uh, what goods and services we purchase and sell in our foreign trade, and with which countries. In a structure we see a structure is also known as a direction. That means we see which countries are our partner in the context of the foreign trade. Composition means ki what type of goods and services you can see what type of goods and services we export and import. And if you see regarding the volume, the volume means how many goods and services, their quantity we export and import. So regarding the foreign trade we can uh, point out the 3 points, and these are the exporter of primary products and importer of finished goods. India became exporter of primary products and importer of finished goods. इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपियन थे या जो ब्रिटिश सरकार थी वो इंडिया से प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, देखिए ये सब चीज़ें, जैसे कि रॉ सिल्क है, कॉटन है, वूल है, शुगर है, इंडिगो है, जूट है, ये सारी चीज़ें वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे और ये सारा रॉ मटेरियल था। दैट मीन्स प्राइमरी प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स जो है वो ब्रिटेन से या यूरोपियन कंट्रीज से बना करके वापस इंडिया में लाते थे। तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंडिया इंपोर्टर हो गया फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स में क्लोथ्स आते थे, वुलन क्लोथ्स हैं, सिल्क है, कॉटन है और कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है ना। तो ये सारी चीज़ें वो इंडिया में ला करके बेचते थे। दैट मीन्स कि इंडिया इन सब चीज़ों का इंपोर्टर हो गया और एक्सपोर्टर हो गया वो
रॉ मटेरियल का या प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। जबकि अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो इंडिया की कंडीशन अलग थी। इंडिया एक्सपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, और इंपोर्ट था वो हम बहुत कम चीज़ें करते थे, और इस वजह से हमारा जो फॉरेन जो ट्रेड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था एंशियंट टाइम में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ें बदल दी। सेकंड थिंग यह देखिए कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो कंप्लीट कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार का था। दैट मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। और हमारा जो ट्रेड था वो मोस्टली हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और जो बाकी जो ट्रेड होता था उसमें 2-3 कंट्री होते थे, लाइक चाइना, सीलोन जो कि अब श्रीलंका है, एंड पर्शिया जो कि अब ईरान है। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, जब 1869 में स्वेज कैनाल बन के तैयार हो गई, उसके बाद से ब्रिटेन और इंडिया के बीच की जो डिस्टेंस है सी रूट में वो बहुत कम हो गई, काफ़ी उसका फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। तीसरा पॉइंट हमारा आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन से जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे, उन ट्रेड रिलेशंस में इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट कम था, ये बात ठीक है। और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि हमारे जो एक्सपोर्ट थे, दीज एक्सपोर्ट वर हायर देन इम्पोर्ट। दैट मीन्स आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम एक टर्म पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो था वो सरप्लस था, यानी कि पॉजिटिव था, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात होती है। बट ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था, या जो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और उसका जो हमें बेनिफिट मिला, उस बेनिफिट को ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए यूज़ किया। यहाँ हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, यानी कि इस पैसे का या जो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ एक्सपोर्ट करने से, ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से, या जो फॉरेन ट्रेड में बेनिफिट था, उसका इन्होंने यूज़ किया अपने ऑफिस सेट करने में। आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, या साउथ दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, सेक्रेटरीट हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ये सारी की सारी जो बिल्डिंगें हैं ये ब्रिटिशर्स बना करके गए थे, और वो सारा पैसा हम इंडियंस का ही या हमारे देश का ही उसमें लगा हुआ है। तो ये जो वेल्थ है, ये सारी की सारी वेल्थ क्या हो गई, ड्रेन होकर के ब्रिटेन चली गई। दूसरा कि टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो पैसा इंडिया से उनको मिलता था, उस पैसे का वो यूज़ वार करने में, लड़ाइयाँ करने में करते थे, तो उसका भी ब्रिटेन को ही फ़ायदा था। और टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, बहुत सारे इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज जस्ट लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, और जो इस तरह की सर्विसेज हैं उनको इंपोर्ट करने में ब्रिटिश सरकार इसका यूज़ करती थी। तो ये हमारा जो वेल्थ है वो सब ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। तो ये हमारे को इसका एक लॉस हुआ। इसके बाद एक सेपरेट टॉपिक है, अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, वो है रिगार्डिंग द स्वेज कैनाल। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए कई बार इसके ऊपर एक नंबर का कुछ क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये कि स्वेज कैनाल कब बनी, तो ये ओपन हुई 1869 में, और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन की और जो एक्सेस ऑफ मेड है इंडियन मार्केट में वो इजी हो गया, मतलब इजी ट्रेड होना शुरू हुआ। दूसरा ये है कि जो डायरेक्ट रूट ये एस्टेब्लिश हो गया ब्रिटेन एंड इंडिया, एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका, मतलब पहले अफ्रीका होके जाना पड़ता था ब्रिटेन के लिए, अब वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई। तो ये इसको एक फ़ायदा हुआ। तो ये हमारे को, और ये वन ऑफ द मोस्ट वाटरवेज, बिजी वाटरवेज है, इकोनॉमिक भी है ये स्वेज कैनाल का वाटरवेज। और ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा हम पूछ सकते हैं, बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी कैनाल जो है उसको ब्रिटेन और इंडिया के फॉरेन ट्रेड में उससे हमें बेनिफिट हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट द फॉरेन ट्रेड। अगले वीडियोस में मैं और जो टॉपिक इस चैप्टर के बच्चे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसके पहले वाले वीडियोस में हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से 3-4 पार्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।